Good morning, class 11 students. Welcome back. We were doing in the last video the questions of geometric progression, the questions related to general term, and also related to sum of our n terms of a GP. In this video also we'll continue with these questions only. Okay, the first question in this video is actually very important, asked in the exam, lots of time, but this question, by seeing this question, we will never understand that it is a GP, because we need to convert this into a GP. Okay, see, the question is solve 0.5 plus 0.55 plus 0.555 and so on to n terms. So let's take it as Sn. 0.5 plus 0.55 plus 0.555 plus dot n terms. सबसे पहले क्या करो, पॉइंट को हटाओ. 5 by 10, 55 by 100, 10 square, 555 by 10 cube. These are the basic steps which you have to do in all questions of this type. Now what's your next job? Your next job is to take out that thing which is common. 5. 1 by 10 plus 11 by 10 square plus 1 by 10 cube plus dot n terms. Now your job is to multiply 9 and divide by 9. Plus 99 by 10 square plus 999 by 10 cube and so on n terms. Okay, now your job is to ऊपर में 9 है, नीचे 10 है. You have to convert the 9 in terms of powers of 10. So we can write 10 minus 1 by 10 plus 10 square minus 1 by 10 square. 100 minus 1 is 99. Again 1000 minus 1 is 9999 n terms. Okay, now again next job is 10 by 10 is 1 minus 1 by 10 plus 1 minus 1 by 10 square plus 1 minus 1 by 10 cube plus dot n terms. Okay, now the same question may come in two different ways. एक में पॉइंट होता है, एक में पॉइंट नहीं होता है. तो जब पॉइंट है तो मैंने इसको 10 में डिवाइड मारा, फिर कॉमन 5 निकाला, फिर 9 से इंटू किया, फिर 9 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया. अगर पॉइंट नहीं होता तो क्या करते, पहले स्टेप में 5 निकालते, 1 plus 1 plus 1 then divide by 9, 5 by 9 into 9 plus 99 plus 9999 and then 9 की जगह 10 minus 1, 10 square minus 1 करके लिखते हैं. सेम मेथड करेंगे. Here what is the difference is point, so we just for the point we are dividing by powers of 10. Okay, now see here. From here to here we have n terms. From here to here we have n terms. From here to here we have n terms. This term is this. This is this. This is this. And then like this we have n terms. Each terms has 1. That means 1 is adding 1 plus 1 n terms. N times 1 is adding. That means n. 1 plus 1 plus 1. 1 into n. Minus 1 by 10, 1 by 10 square, 1 by 10 cube. So minus common निकाल लो आप. तो क्या बचा? 1 by 10, 1 by 10 square, 1 by 10 cube and so on till n terms. Okay, now this is the sum of a series. So first we need to check what is this series. This is power series. तो डिवाइड मार के देखते हैं. Okay, whether it is AP or GP. तो हमें GP दिखेगा क्योंकि ये पावर है 10 square 10. So 1 by 10 square divided by 1 by 10. 1 by 10 square divided by 1 by 10. So 1 by 10 is the, again 1 by 10 cube divided by 1 by 10 square. Again 1 by 10. That means common ratio is 1 by 10. And first term is 1 by 10. Common ratio is 1. This is the sum of a GP series. Okay, so formula लगा देंगे sum of a GP series का. 5 by n minus a 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. We have to use this formula because the common ratio is less than 1. Okay, the next job is just to solve it. 9 minus 10, 10 ऊपर जाएगा, comma 10 10 कट जाएगा, 9 बचेगा, take multiply it and you will get the answer. Okay, that is your homework. Just to multiply it. Let's go for the next question. Okay, class, the next question. The PF, QF and RF terms of an AP as well as those of GP are ABC respectively. So try to understand this statement, what they're talking about. PF term is A, QF term is B and RF term is C. किसका, किस सीरीज का? AP का भी as well as GP का भी.
ठीक है? So we are dealing with an AP and a GP, where AP PX term is also A and GP PX term is also A. So these things are given to you, and you need to prove that this equation is equals to 1. A to power B minus C, B to power C minus C, C to power A minus B. कैसे करेंगे? तो we are dealing with two series here. So for the AP, let the first term is X and common difference is D. क्योंकि D नहीं दिया हुआ है तो मैं D ले सकता हूँ. And for GP, let the first term is capital A and the common ratio is capital R. ठीक है? अब क्या क्या दिया हुआ है? TP x plus P minus 1 into D. Okay? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, it is A. So A equals to x plus P minus 1 into D. एक ही दिया हुआ है. दूसरा TQ x plus Q minus 1 into D. What is TQB? X plus Q minus 1 into D. Okay? दूसरा TR, R term, x plus R minus 1 into D. What is R term? C, x plus R minus 1 into D. So there are three equations given to you, 1, 2 and 3. Similarly, three equations are given here also. Here also the TP term is what? A. That is A R to power P minus 1 is A. TQ is B. A R to power Q minus 1 is B. And TR is C. A R to power small r minus 1 equals to C. ठीक है? Okay. अब these are the equations given to you, 1, 2, 3 and यहाँ पे 4, 5 and 6. इन इक्वेशन से तुम्हें इनका वैल्यू सॉल्व करके 1 आना चाहिए बोल रहे हैं. ये कैसे लाओ बेटा? हाउ टू गेट दीज थिंग्स, दैट इज अ बिग इश्यू. ये कैसे लाओ? हाउ टू गेट इट? तो इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा मैं क्या करूंगा. ठीक है ना? सबसे पहले जहां पे सो मेनी वेरिएबल्स आ गए हैं, एक्स डी ए आर, कितना सारा वेरिएबल है. एक्स है, डी है, ए है, आर है, कैपिटल आर है, बाकी तो गिवन है. एबीसी इज गिवन टू यू. The variable which I have taken is x, d, a, r. The job is to, because see, we need to prove this is equals to 1, right? इसका मतलब ये सारे चीज कट के बनाएंगे. That is confirm. ये सारे चीज कट के क्या आएंगे बेटा? 1 आएंगे. That is confirm. So how to get 1? That means इन सबको like terms में convert करना पड़ेगा. क्योंकि कटना है, सब कटेगा. So we need to make it in a like terms. Now how to make it in a like terms? That is a big issue. इनको मैं like terms में कैसे लेके आऊं? ठीक है? The foremost idea is to bring them in a like terms. That is a very much important part we need to understand. ठीक है? तो like terms में कैसे लाएंगे? तो देखो b minus c क्या है? b minus c, c minus a, a minus b. तो चेक करना पड़ेगा b minus c कैसे निकालूंगा. तो यहां से b minus c कर दो. a to power b minus c है ना, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. c minus a इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. a minus b इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. ठीक है? ओके. मैंने बोला कि b माइनस सी इसके लिए, क्यों इसको भी माइनस, इसको भी तो कर सकता हूं ना. b माइनस सी इसको भी तो माइनस कर सकता हूं भैया, क्यों नहीं कर सकता हूं? इसको भी माइनस कर सकता हूं, इसको भी माइनस कर सकता हूं a माइनस बी से. तो क्वेश्चन इज, तुम ये वाला a जीपी से सब्स्टिट्यूट करोगे कि एपी से सब्स्टिट्यूट करोगे? दैट इज अ बिग इशू. ठीक है? वो तुम्हें समझना है कि किसको यूज करके मैं सब्स्टिट्यूट करूं. तो लेट मी टेल यू वन थिंग. ओके, अगर तुम इस ए के जगह ये लिखा और अगर तुम ए के जगह ये लिखा, कौन सा इजी है सॉल्व करना? क्या इसको तुम सॉल्व कर पाओगे? समथिंग प्लस समथिंग होल टू दिस? नहीं. लेकिन इसको तुम सॉल्व कर पाओगे. ए टू बी माइनस सी आर टू पी माइनस 1 इंटू बी माइनस सी. तो ये सॉल्व करना इजी है बेटा, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज इन प्लस फॉर्म. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि हम ये पावर्स वाले को हम एपी से निकालेंगे और नीचे वाले को हम जीपी से निकालेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? क्यों? बिकॉज इनटू वाला में पावर्स को मैं इजीली सेग्रीगेट कर सकता हूं. ठीक है? सो सबसे पहले क्या करते हैं? b माइनस सी माइनस ए माइनस बी. मुझे समझ में आ गया. ये ए को मुझे ये वाला पावर्स में नहीं डालना है, यहां डालना है. ठीक है? इस b को मुझे पावर्स में नहीं डालना है, यहां डालना है, बिकॉज दैट वी कैन कैलकुलेट. सो व्हाट टू डू विद द पावर्स? b माइनस सी माइनस ए माइनस बी के साथ क्या करेंगे?
So let's calculate b minus c. b minus c, तो x minus x 0, ये d कॉमन, q minus 1 minus r plus 1, ऐसा आएगा. इतना समझ में आएगा. b minus c, तो ये प्लस और माइनस 1 कर जाएगा, तो b minus c यू आर गेटिंग d into q minus r. ठीक है, क्या आ रहा है ये, q minus r आ रहा है. डन. ओके, चलो b minus c आ गया. अब नेक्स्ट क्या चाहिए भैया मेरे को, c minus a चाहिए. तो c minus a, x minus x कर लिया, d r minus 1 minus p plus 1, तो कितना आ रहा है, r minus p आ रहा है, तो d into r minus p, 1 1 कर दिया. c minus a भी आ गया. और एक मुझे क्या चाहिए, what the next thing, a minus b, ये जरा, a minus b, x minus x, d p minus 1 minus q plus 1. So a minus b is d into p minus q. So these are the three things I got. B minus c I got this, c minus a I got this, a minus b I got this. अब मैं क्या करूं, तो चलो कोशिश करते हैं क्या करना है. Let's talk about LHS. So what is LHS? a to power b minus c, b to power c minus a, c to power a minus b. ठीक है. अब what is a? A is a r to power p minus 1 whole to power b minus c. ठीक है, इनको देखना पड़ेगा हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. Can we calculate anything or not? That we need to see. Okay class, next what is b? A r to power q minus 1 whole to power c minus a. Okay, next a r to power smaller minus 1 whole to power a minus b. चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. a to power b minus c, r to power p minus 1 into b minus c. यहाँ पे a to power c minus a, r to power q minus 1 into c minus a. यहाँ पे a to power a minus b, r to power smaller minus 1 into a minus b. ऐसा आ रहा है. ठीक है क्लास. अब क्या करें हम, अब a to power something into a to power something into a to power something ऐड कर दो. a to power b minus c plus c minus a plus a minus b. ये समझ में आया. मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, क्लियर. ओके, तो अब ये सॉल्व करने से कितना आ रहा है, तो माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस सी प्लस ए कट गया, बस माशाल्लाह a to power 0 आ गया. वैसे r के साथ क्या करेंगे, r to power p minus 1 into b minus c. ठीक है, प्लस q minus 1 into c minus a plus r minus 1 into a minus b. ऐसा आएगा. r to something, r to something, r to something, प्लस 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 फॉर्म में आ जाएगा. ये तो a to power 0 आ गया, तो ये कितना आएगा, तो इसको मैं रफ में सॉल्व करता हूं बिकॉज इट्स अ ह्यूज वन. आई कैन नॉट कैलकुलेट हियर ओनली. ओके, इनटू द पावर्स. सो लेट मी कैलकुलेट दिस सेपरेटली. p minus 1 into b minus c. व्हाट इज b minus c? चलो पूरा इंटू कर देते हैं. b minus c सब्स्टिट्यूट करके फायदा है कुछ? कोई फायदा नहीं है. लेट मल्टीप्लाई द होल थिंग. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स. मे समथिंग मे कैंसल, होप सो. p minus q minus r, r minus t and p minus q, ऐसा आ रहा है ना. लेट मी सी हियर, लेट मी थिंक अबाउट इट. a minus b के जगह अगर तुम कुछ आएगा, पहले पूरा इंटू करते हैं. p into b, pb minus pc minus b plus c plus qc minus aq minus c plus a plus ra minus rb minus a plus b. ठीक है, अब चलो चेक करते हैं. देखो तो प्लस सी माइनस सी कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस ए माइनस ए भी कट गया. अब क्या बचा है, पी बी पी सी क्यू सी क्यू ए आर बी. कोई फायदा होगा? पी बी माइनस पी सी क्यू सी माइनस क्यू ए माइनस आर बी. ओके, व्हाट टू डू विद दिस थिंग? लेट मी थिंक. P कॉमन निकालेंगे तो B माइनस सी आएगा. ठीक है, कुछ नहीं कर सकते B माइनस सी के साथ.
बिकॉज ये सारा चीज कट के जीरो आना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू प्रूव वन ना बेटा, सो इट शुड बी कमिंग r to power 0, दिस द होल थिंग शुड कैंसल, so we need to find these terms somewhere, then only I can make it cancel. So b minus c की जगह d, okay, what is p, b minus c, q, c minus a, r, a minus b, घूम फिर के ये आ रहा है p b minus c. अब करते हैं, चलो p b minus c is what, d q minus r, जो मैं सुबह सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, अब मैं देख रहा हूँ सारा लाइक टर्म आ जा रहा है, देखो पी क्यू आर इधर भी है ना, पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर आ गया, ओके, क्यू सी माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, सी माइनस ए की जगह लिखेंगे डी आर माइनस पी, प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे, ए आर इन द प्लेस ऑफ ए माइनस बी, डी पी माइनस क्यू. चलो आर इज कॉमन, सॉरी डी इज कमिंग कॉमन, व्हाट आर गेटिंग, पी इंटू क्यू माइनस पी इंटू आर प्लस q into r minus q into p plus r into p minus r into q. चलो ये कंफर्म करने वाला है सारा चीज, माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी आर पी माइनस पी, हो गया, जीरो आएगा. सो आई एम गेटिंग जीरो, दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS. कंफर्म जीरो तो आना है बेटा, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. मैंने पहले b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, बिकॉज इट विल क्रिएट अ मेस. क्यों, b माइनस सी है, इसको फिर ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कर सकते हैं हम, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट हमने लास्ट तक पहले इसी को सॉल्व किया, देखा चीजें कट रहे हैं, कटने के बाद व्हेन आई हैव नथिंग टू डू देन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके क्लास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a b c d are in GP, prove that this equation is equals to a minus b whole square. Okay, so this is a similar type of question which we did in AP. Like if A, B, C are in AP, then from here let's have a small recap. A, B, C are in AP. From there, prove a particular three numbers are in AP or a particular expression. तो ऐसे कैसे हम क्या करते थे, जो given है that is B minus A equals to C minus B, अब फिर दो लाइन छोड़ देते थे और फिर हम क्या करते थे, prove that लिखने की कोशिश करते थे. We have to use these expressions there, right? अगर याद है तो आपको अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं. सिमिलरली जैसे तुम्हारे पास, ये थोड़ा ध्यान से लिख के रखना, कहीं पे नोट बना के, ठीक है ना, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से. इफ आई से ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब क्या होता है, बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई डी और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी. सो यूज these three equations to prove a particular expression. Or one unique thing we have to study here, whenever there are multiple variables in the question, when multiple variables in the question, then to simplify the number of variables, we always use some other method instead of this. We use some other method. What is some other method is that this is in GP where the first term is A. Can I say second term is B, that is AR? Can I say the third term is C, that is AR square? तो instead of B मैं ये ना यूज करके मैं इसको AR मानूंगा, इसको AR square मानूंगा. क्या फर्क पड़ रहा है सी? I'm converting the multiple variable into simple less number of variables. A, B, C तीन वेरिएबल्स था पहले, इनको यूज करूंगा तब भी तीन ही वेरिएबल रहेंगे. लेकिन अगर तुमने इनको यूज किया, दो वेरिएबल बच गए. देखो B को मैंने A और R के फॉर्म में लिख दिया, C और A और R के फॉर्म में, मतलब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल A है और दूसरा वेरिएबल R है. So when we use this type of conditions, when we need to reduce the number of variables. So what I'm trying to say is that always try to use this funda first, okay? Or by practicing question you will understand कि ऐसा कब करना है और ऐसा कब करना है, ठीक है? Now let's take out this question. If A, B, C, D are in GP, prove that B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square equals to A minus D whole square. See there are so many variables B, C, C, A, D, B, A, B, C, D, चार variables हैं और इस तरफ से दो ही variables A और D. अगर जनरल फंडा बात करें तो since A, B, C, D in GP, so I can write like this: B by A equals to C by A,
इक्वल्स टू डी बाई सी। तो यहां से क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यहां से क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी। ठीक है क्लास, ये दोनों इक्वेशन आ रहा है मेरे को, इन दोनों से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी आ रहा है, इन दोनों से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ रहा है। अब यहां पे वेरिएबल है ए बी सी डी, लेकिन यहां पे वेरिएबल ए और डी, दैट मींस सी एंड डी को रिमूव करना है एलएचएस से। हम ऐसे सोचते हैं नॉर्मली, सी और बी से रिमूव करना है यहां से। तो क्या तुम दोनों इक्वेशन से सी और बी हटा सकते हो? हटा सकते हो। बी को सी और बी हटाना है, सॉरी, बी को अंडर ए सी लिखोगे तो फिर से ए आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, तो सी और बी को हटाना पड़ेगा। क्लियर? So if I think directly there are 4 variables, you have to remove 2 variables. So instead of that, better convert everything into 2 variables. तो हम ऐसा ना करके, अगर तुम ऐसा करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। Instead of that, I can say, what is B? AR. What is C? AR square. What is D? AR cube. तो मैंने क्या किया पता है? मैंने 4 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, A and R. So this becomes more simpler. अब LHS डालो, तो व्हाट इज LHS? B माइनस सी होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस D माइनस B होल स्क्वायर। बस B की जगह वैल्यू डालो, AR माइनस AR स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर प्लस AR क्यूब माइनस AR होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉमन निकलता है निकालो। AR कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 1 माइनस आर होल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां पे क्या कॉमन निकल रहा है बेटा? ए कॉमन निकल रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बच गया। यहां कॉमन निकाला ए आर, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन तीनों में से क्या दिख रहा है कॉमन? ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मेरे को। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन क्लास? ओके, या तो अब तुम क्या करो, आरएचएस भी सॉल्व करो, दोनों साइड साइड सॉल्व करना पड़ेगा तो तुम्हें दिखेगा व्हाट आई नीड टू डू। आरएचएस भी सॉल्व करो, आरएचएस क्या हो जाएगा? a माइनस डी होल स्क्वायर, ओके, a माइनस ए आर क्यूब होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस आर क्यूब ऐसा यहां दिखना चाहिए। द सेम थिंग यू शुड गेट हियर, सो वी विल गेट दिस थिंग हियर आल्सो, बट वी नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, हमें दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? चलो इन दोनों टर्म्स को देखो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या बचा? 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दिख रहा है? इन दोनों टर्म्स देखते हैं, इन दोनों टर्म्स, चेक आउट दीस टू टर्म्स। यहां पे ए आर कॉमन आया तो आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो ए आर कॉमन, यहां भी तो ए आर कॉमन आया है, इसका 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो कैन आई यूज द फॉर्मूला इस, अब यहां पे क्या बचा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए प्लस बी। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, चलो फिर भी करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? ओके ओके, अब यहां पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है? आर स्क्वायर में कटेंगे, यहां पे कुछ भी कट रहा है? नहीं कट रहा। हाँ, एक चीज कट रहा है, सो आर स्क्वायर माइनस आर, यहां कुछ कट रहा है, यहां कुछ नहीं कट रहा, 2 माइनस आर स्क्वायर। सो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग, देयर इज नो यूज ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, कुछ भी फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। वी जस्ट नीड टू सॉल्व द होल थिंग एंड वी शुड एंड अप विद दिस, ठीक है? ये आना चाहिए, हमें इसको निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म आना चाहिए। तो लेट्स मल्टीप्लाई द होल थिंग, ठीक है? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर, इधर फॉर्म इंटू करो, ए स्क्वायर ना, इसको बाद में इंटू करते हैं, अभी छोड़ दो क्योंकि अभी इंटू करके फायदा नहीं है। अब क्या आ रहा है? अभी कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, प्लस 1 माइनस 1 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट रहा है। तो यहाँ देखो सिंपल हो गया ना बेटा, थोड़ा इजी हो गया ना, पहले बहुत टेंशन हो रहा था।
अब तो थोड़ा तो इजी हुआ है। ओके, तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन, अब मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर माइनस 2r, 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर 2r 4 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्या सॉल्व करके कुछ आएगा, क्या ये चीज आने का चांसेस है? ये चीज आने के लिए r6 चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए r6 चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऐसा आना चाहिए। लेकिन मेरा तो r6 कहीं नहीं आया बेटा, शायद से मेरे मिस्टेक, ओहो मिस्टेक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे r4 आएगा, आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, नहीं माइनस 1 आएगा, ये कटेगा ऐसे करके। सो आई मेड अ मिस्टेक अगेन बेटा। अब चलो सॉल्व करते हैं, तो इधर भी आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर कैसे देखो, शॉर्टकट नहीं मारने का, शॉर्टकट जितना मारेंगे उतना गलती हो रहा है मेरा। प्लस और प्लस, प्लस 3r स्क्वायर माइनस 2r, 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 2r माइनस r4 प्लस ए स्क्वायर, इसको भी खोलो, r4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा कॉमन निकालते हैं, ए स्क्वायर कॉमन, क्योंकि बाहर ए स्क्वायर चाहिए, r इंटू दिस माइनस r6 प्लस 3r4 माइनस 2r क्यूब प्लस r4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके ये चीज लाना है मेरे को, तो कैलकुलेट करके ये रहा, एक 1 आ गया, चलो 1 आ गया, प्लस r6 चाहिए, कहीं पे प्लस r6 है, नहीं है, माइनस r6 है, चल आई शुड गेट प्लस r6 बेटा, तो गॉन केस। और क्या चाहिए, माइनस 2r क्यूब चाहिए, ये रहा माइनस 2r क्यूब, और इधर क्या रहा 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r4 माइनस 2r स्क्वायर। I am not getting the answer. Wait for some time. Let me see what mistake I did. Okay बेटा, मिस्टेक मिल गया। सी, इन दोनों से मैंने कॉमन निकाला था, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये बचा, बीच में प्लस बचेगा ना, मैंने माइनस लिख दिया, तो कहां से आएगा आंसर, तो ऑल थिंग विल कैंसल आउट। अब मुझे ये क्वेश्चन करने में आलसी लग रहा है, प्लीज कैन यू डू द होल थिंग? नो, मैं ही कर देता हूं। हम क्या करते हैं, जो चीज पहले कर रहे थे वही करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई थॉट लाइक, तुम क्या करो, तुम इन दोनों से कॉमन निकालो, आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कर, ये आ जाएगा 1 माइनस आर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर r4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। सब खोल डाल देंगे अभी, कुछ नहीं सोचने का। तो इधर क्या क्या आ रहा है बेटा, तो इधर कुछ नहीं कट रहा है, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं कटेगा, तो ठीक है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर आया, माइनस 2r आएगा, प्लस r4 आएगा, प्लस ए स्क्वायर r4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। चलो अब ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अब आर स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू माइनस r4 माइनस 2r क्यूब प्लस r6, अब आ रहा प्लस r6 प्लस r4 प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। चलो प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर वन केस, ठीक है ना, प्लस r4 माइनस 2r4, आ गया बेटा, आ गया आंसर हमारा। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस r6 माइनस 2r क्यूब, एंड वी कैन से that this is nothing but a square 1, we can say LHS is equals to RHS। उतना कहानी करने का जरूरत नहीं, LHS is equals to RHS। बट अभी मेरे को लगा तुमको ऐसा फील होगा कि सर ने बहुत टफ तरीके से करवा दिया। नो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो दैट्स व्हाई वी गेट नॉट गेटिंग द आंसर, बट इट्स एन इजी वे टू कन्वर्ट द 4 variables into 2 variables instead of using b square ac c square d bd, वो सब यूज नहीं करेंगे क्लास। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। Okay, class, the next question is, see, if A, B, C are in GP and A to the power 1 by X, B to the power 1 by Y, C to the power 1 by Z are equal, they are equal, prove that X, Y, Z are in AP.
mixture of AP and GP questions. Okay, so since A, B, C in GP, so I can say like this: B is equals to AR and C equals to AR square, or we can say B by A equals to C by A also. That also we can use, but depend on क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना. एंड और क्या दिया हुआ है? एंड दिया हुआ है a to power 1 by x, e to power b to power 1 by y equals to c to power 1 by z. And we need to prove, what we need to prove? To prove y minus x equals to z minus y. Or we can prove 2y equals to x plus z. ये प्रूफ कर दो या तो ये प्रूफ कर दो, हम दोनों से तुम्हें ये प्रूव हो जाएगा कि x y z यानी a b. तो तुम्हें इन इक्वेशंस को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई जेड के फॉर्म में लाना है, ठीक है. तो क्या करें भैया, तो चलो करते हैं. नाउ व्हाट इज a टू पावर 1 बाय x, e टू पावर b टू पावर 1 बाय y इक्वल्स c टू पावर 1 बाय z. चलो सॉल्व करते हैं. व्हाट इज a टू पावर 1 बाय x छोड़ो, b क्या है भैया, a r टू पावर 1 बाय y, c क्या है, a r स्क्वायर टू पावर 1 बाय z, ठीक है. तो ये तो ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा a टू पावर 1 बाय y, r टू पावर 1 बाय y, ये हो जाएगा a टू पावर 1 बाय z, r टू पावर 2 बाय z, ठीक है. और ये हो जाएगा a टू पावर 1 बाय x. अब क्या करूं, यही आ रहा है, इसे तो कुछ नहीं ला सकते हम, कुछ भी नहीं आएगा इससे. कुछ आएगा बेटा, पावर्स के साथ डील करना है मेरे को, पावर्स के साथ, क्योंकि मुझे x y z चाहिए तो मुझे पावर्स के साथ डील करना पड़ेगा. ये समझने का कोशिश करो. Try to understand this concept that we need to make in power format. Okay, तो how to make it in a power format? इन तीनों के साथ काम करने के लिए सब अलग अलग वेरिएबल देखो, a to by x, a to by y, r. तो चलो एक ही करके काम करते हैं. a to power 1 by x equals to a to power 1 by y equals to r to power 1 by y. ये आ रहा है. ओके, तो यहां से मैं हार्डली राइट टर्म्स पे एक साथ लिखो, a टू पावर 1 बाय x, a टू पावर 1 बाय y इक्वल्स टू r टू पावर 1 बाय y. ऐसा आ सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, राइट. तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a टू पावर 1 बाय x माइनस 1 बाय y इक्वल्स टू r टू पावर 1 बाय y. और कुछ आएगा? और कुछ नहीं आ सकता. ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको और इसको इक्वल करते हैं. a to power 1 by x equals to a to power 1 by z, r to power 2 by z. Because we need to remove a and r. We need an expression in terms of x, y, z. a और r को हटाना पड़ेगा. So we will try to remove a and r. Let's see. ये हो जाएगा a to power 1 by x minus 1 by z equals to r to power 2 by z. ऐसा आएगा. तो ऐसा आ रहा है और ऐसा आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है. कैसे करें भैया? तो हम क्या करेंगे, आर को भी ए के फॉर्म में लिख दो, ठीक है. आर को ए के फॉर्म में लिख दो. कैसे लिखोगे? तो मुझे पता है अगर एक्स स्क्वायर वाई होता है तो एक्स इक्वल्स टू वाई टू पावर 1 बाई 2 होता है. ये पावर इधर जाने से रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई आई होल टू पावर रेसिप्रोकल इक्वल्स टू आर. इसका रेसिप्रोकल बन गया. 1 बाई वाई का उत्तर जाने से 1 डिवाइडेड बाई वाई, आर आ गया, आर ए के फॉर्म में आ गया. इसको यहां डाल दो. Therefore, because what I need an expression in terms of x, y, z. So I need to remove a and y, and that is the reason I'm doing this question, because this question is a little bit tricky. So ये हो जाएगा a to power 1 by x minus 1 by z. r क्या है, a to power 1 by x minus 1 by y to the power y whole to the power 2 by z. ठीक है. तो ये हो जाएगा a to power 1 by x minus 1 by z equals to a to power 1 by x minus 1 by y into y 2y by z. अब देखो दोनों में पावर बेस इक्वल है, therefore I can say पावर इक्वल होगा 1 by x minus 1 by z equals to 1 by x minus 1 by y into 2y by z. अब मुझे मिल गया कि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x y z. इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है टू गेट द आंसर. बस दिस इज माय. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. सो यहाँ पे x z आया, तो z माइनस x होगा. इधर x y, यहाँ पे y माइनस 1 y माइनस x होगा. ओके, इधर हो जाएगा 2y by z. तो ये y y कट गया,
ये एक्स जेड कर दिया तो कितना है जेड माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 2x। तो ये माइनस 2x इधर जाएगा प्लस 2x होगा तो कितना आएगा जेड प्लस एक्स इक्वल टू 2y। हो गया प्रूफ। Therefore, I can say x, y and z are in AP. So देखो शुरू में बहुत ही ट्रिकी लग रहा था तो पहले मुझे जो दिया वो लिख whatever is given to you I have written that concept. I have converted everything in terms of a and r variable. Then what to do with this expression? Then see, I understand that we need the powers. I don't need the bases. a r नहीं चाहिए मुझे powers चाहिए because power are in form of x, y, z. So I'm trying to make the base equal. तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व किया ऐसा अजीब सा आ गया, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व किया अजीब सा आ गया। अब मुझे क्या अभी मेरा बेस इक्वल नहीं आ रहा था, एक ए है एक आर है तो दोनों मुझे बेस इक्वल चाहिए, ए चाहिए तो मुझे आर को हटाना पड़ेगा तो मैंने आर को हटा के लिख दिया, बेस इक्वल आ गया, पावर्स को इक्वल कर दिया, वी गॉट द आंसर। ओके क्लास, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, asked in exams most of the time in most of the school. If PQ are in GP and the equations this and this have a common root, then show D by P plus comma E by Q comma F by R are in AP. ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। PQ are in GP. Since PQ are in GP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कैन राइट Q इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब इसमें तो R नहीं लिख सकते ना, P कैपिटल R स्क्वायर, ओके, एंड R इक्वल्स टू P आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म पी आर, थर्ड टर्म पी आर स्क्वायर, और Q बाई P इक्वल्स टू R बाई Q, दैट इज Q स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मैंने दोनों क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चला, वो क्वेश्चन करके ही पता चलेगा, तो बीच में पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। सो फॉर द टाइमिंग आई एम कीपिंग इन दिस वे ओनली, ओके। नाउ एक और तरीका बोल सकते हैं हम, यहां पे जो टर्म्स है वही टर्म्स इस एक्सप्रेशन भी है, देखो पी क्यू आर है ना, और इस एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो एक्सप्रेशन वो वाला है जिसको मुझे एक में प्रूव करना है। ट्राई टू सी द सिमिलैरिटीज ऑफ द टर्म्स, ओके। तो इस इक्वेशन में वो टर्म्स है जो जीपी में है, मुझे पता है, इस एक्सप्रेशन में वो टर्म्स है जिसमें मुझे प्रूफ करना है कि एपी में है, क्लियर। और मुझे दोनों का कॉमन टर्म है, कॉमन रूट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट? रूट ऑफ अ इक्वेशन मींस वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका जो एक्स वैल्यू निकालोगे, इसको जो सॉल्व करोगे इस कोऑर्डिनेशन को, इसका जो एक्स वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, इसका भी जो एक्स वैल्यू आएगा वो दो वैल्यू आएगा, दोज आर कॉल्ड एज रूट्स। एक दोनों में कॉमन होगा, दोनों में इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इससे एक्स वैल्यू निकालो, यहां डाल दो, क्योंकि दोनों का कॉमन रूट है, मतलब इसका एक्स वैल्यू और इसका एक्स वैल्यू सेम होना चाहिए, ओके क्लियर। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, to prove those three are in AP, that means E by Q minus D by P equals to F by R minus E by Q, or we can prove 2E by Q equals to F by R plus D by P। या तो ये प्रूफ कर दो या तो ये प्रूफ कर दो, ओके। तो ये मुझे प्रूफ करना है, DEF जो इस एक्सप्रेशन में है, PQR जो इस एक्सप्रेशन में है, इसलिए मैंने ये यूज नहीं करेंगे अब हम। सो मैं ये यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे जो टर्म्स है वो एक्सप्रेशन में है, वेरिएबल्स ज्यादा नहीं है, जो सिमिलर वेरिएबल्स है, ओके ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इतना दिया हुआ है, इतना प्रूफ करना है। बोला है कि दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, मतलब इससे एक्स निकाल के यहां डाल सकते हो, इससे एक्स निकाल के यहां डाल सकते हो, राइट अंडरस्टैंड। यहां से x निकाल के यहां डालो, यहां से x निकाल के यहां डालो। अब मेरा बात है कि कहां से x निकाल के कहां डालेंगे, कर तो दोनों सकते हैं, मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट विच वन यू विल यूज, whether you will take out x from here and substitute here, or you will take out x from here and substitute here. So we will try to take out x from here. Why? Because the term which is given to you, the similar terms that are given to you are in this equation. So I will try to find the x value from this equation instead of this equation. So I will go for this method. Clear? So in this equation,
px square plus 2qx plus r equals to 0. What is x? Minus b plus minus under root b square minus 4ac. 4ac. Okay, divided by 2a. आ गया ना। अब ये मेथड मैंने क्यों यूज किया देखो ध्यान से, माइनस 2q, यहाँ पे प्लस माइनस 2 बाहर आएगा, q स्क्वायर माइनस पी आर डिवाइडेड बाई 2p. सो q यूज किया देखो, q स्क्वायर एंड पी आर इक्वल है, अब दिस टर्म विल बी 0. क्लियर? तो ये टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पी क्यू आर, तो मतलब ये टर्म कहीं ना कहीं यूज होगा ना, इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन से x निकाला, जो कि मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे शुरू में समझ में आ जाना चाहिए. लाइक व्हाट there are like terms are there, so there will be some values will be coming which where I need to substitute this expression. So I am getting q by p minus q by p is x. Okay, minus b plus minus b square 4ac by 2a, ये 0 हो गया, तो minus 2q by 2p, 2 कर दिया q by p. Now since dx square plus 2ex plus f equals to 0 has a common rule with px square plus 2qx plus r equals 0. This implies this x value will satisfy here. D into x square, q square by p square plus 2e minus q by p plus f equals to 0. बस मेरे पास मिल गया एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, और मुझे वही चाहिए 2e by q. तो यहां से मुझे ये लाना है, बस. दिस इज द फाइनल थिंग वी नीड टू डू. क्लियर क्लास? ओके, उसमें थोड़ा क्यू स्क्वायर का वैल्यू डालते हैं, पी आर डी पी आर बाई पी स्क्वायर माइनस 2e by p प्लस f इक्वल्स टू 0. ठीक है क्लास, समझ में आया? तो मुझे 2e by q चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा मेरे को, सो कीप इट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. इससे e हट गया, तो dr by p माइनस 2eq by p प्लस f इक्वल टू 0. अब अगर 2 वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए, तो dr by p प्लस f इक्वल टू 2eq by p. ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, मुझे 2e by q चाहिए, p नहीं चाहिए, तो p को मल्टीप्लाई कर दो, तो drp इंटू p प्लस fp इक्वल टू 2eq. तो ये आ गया dr प्लस एफ पी इक्वल टू ई क्यू, ऐसा है. अब मुझे ई के नीचे क्यू चाहिए. ठीक है क्लास, लेकिन यहां पे क्यू है, तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड मार दो. सो आफ्टर दिस स्टेप वॉट एवर आई एम डूइंग इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड टू प्रूव इट. प्रूव दैट जो करना है मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूं. पहले स्क्वायर टर्म को हटा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कहते स्क्वायर टर्म नहीं है, तो क्यू स्क्वायर की जगह पी आर लिख दिया. ठीक है, फिर मैंने 2 वाला एक तरफ कर दिया, और फिर मैंने देखा p नहीं चाहिए, तो p को मल्टीप्लाई कर दिया. अब मुझे q चाहिए नीचे, तो q स्क्वायर से डिवाइड मार दो, dr बाई क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी बाई क्यू स्क्वायर 2eq बाई क्यू स्क्वायर. तो ये तो मैच हो गया, 2e बाई क्यू मैच हो गया. अब क्यू स्क्वायर तो कहीं नहीं है, तो क्यू स्क्वायर फिर से पी आर डालो, dr बाई पी आर प्लस एफ पी बाई पी आर इक्वल टू 2e बाई क्यू. देखो f बाई आर आ गया, देखो d बाई पी आ गया. Therefore, I can say d by p, comma e by q, comma f by r in AP. Okay, class? So, two things, very major thing here is that, first, why we need to use this method? Why we don't use q equals to pr and r equals to pr square? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लाइक टर्म्स दिख रहा है. नेक्स्ट, इन दोनों का कॉमन रूट है, मतलब क्या यहां से x निकाल के यहां डाल सकते हैं, यहां से x निकाल के यहां डाल सकते हैं. तो मैंने यहीं से x क्यों निकाला? क्योंकि अगेन लाइक टर्म्स दिख रहे हैं मेरे को. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay class, before going to the next question, I skipped one topic, one small thing in the theory. So you have to practice few questions of this type. That is nth term of a GP from the end, like we did nth term of a AP from the end. Okay, so for example, this is a GP A1, A2 ऐसे करते करते this is the last term. So what is nth term from the end? Will be equals to L by R to power n minus 1. खत्म. Where L is the last term, R is the common ratio of this GP, and n is the whichever term from the end they are talking about. But in AP हमने क्या किया था? Nth term, pth term from the end is equals to which term from the front?
वो पढ़ा था, फिर वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला जनरल टर्म, बट यहाँ पे डायरेक्टली nth टर्म फ्रॉम द एंड तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट वन बाय combination with our n-1. Okay, please do 1 or 2 questions of this type, maybe 1 or 2 marks में आएगा. So we don't want to waste time in this because we have a hell lot of others to practice. So let's go for this question. See, if a and b are the roots of this equation and c and d are the roots of this equation, where a, b, c, d are in GP, prove that q plus p is to q minus p equals to 17 is to 15. बहुत ही कचरा वाला क्वेश्चन है, मैंने भी आज तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. तो लेट्स थिंक अबाउट इट. ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो क्या क्या बोला है? पहले लिखा है कि ए बी सी डी आर इन जी. ठीक है क्लास, यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि b इज इक्वल्स टू ए आर लिखेंगे, c इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर लिखेंगे, d इक्वल्स टू ए आर क्यूब लिखेंगे, या तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा एंड c स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा. कहां से आया ये? b बाई ए, इन दोनों के बीच वाला स्क्वायर, b बाई ए इक्वल्स टू c बाई बी, वहां से b स्क्वायर ए सी आ जाएगा, c बाई बी इक्वल्स टू d बाई सी, वहां से c स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा. So what we need to use, we don't know actually for the time being. We can use this also, we can use this also. Let's talk about it. क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे. ठीक है ना, एक ये दिया हुआ. नेक्स्ट और क्या देखिए कि मुझे इसी एक्सप्रेशन को यूज करके ये लाना है बेटा. p प्लस क्यू इज टू p माइनस क्यू माइनस पी. ओके, q प्लस p एंड q माइनस p जो भी आएगा वो से आएगा. ओके, और क्या बोला गया है? a and b are the roots of this equation, c and d are the roots of this equation. Can you calculate the root of this equation? ये वेरिएबल p है तो तुम्हें x का वैल्यू p के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. क्लियर? ओके, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. हाँ, और एक चीज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है सम ऑफ रूट्स बीच वाला होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये सब चीज मुझे पता है थोड़ा बहुत. ओके, तो हम सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. लेट्स सी कैन वी डू इट और नॉट. ओके, a and b are roots of x square minus 3x plus b equals to 0. तो x का वैल्यू निकालते हैं. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 9 माइनस 4b इतना आएगा बस. यहां से एक वैल्यू आएगा 3 प्लस 9 माइनस 4b बाई 2, दैट वैल्यू विल बी a, और एक वैल्यू आएगा b. ठीक है, तो ये x का वैल्यू a हो सकता है तो b हो सकता है. तो एक वैल्यू a हो सकता है. a कौन सा वैल्यू, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, वी डोंट हैव एनी आइडिया. b कौन सा वैल्यू, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, वी डोंट हैव एनी आइडिया. कुछ नहीं पता मेरे को. और इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिखूं c and d are roots of x square minus 12x plus q equals to 0. So what is x? Minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2. तो ये जो x का वैल्यू ac और d है, c प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, फिर से नहीं पता बेटा. तो कैसे करें? q प्लस p निकालना है, q माइनस p निकालना है. यहाँ पे तो q प्लस p, p माइनस q कोई आइडिया नहीं आ रहा. आ रहा है कुछ भी? यहाँ पे x का वैल्यू अलग है, यहाँ पे x का वैल्यू अलग है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूं, मुझे पता नहीं कैसे करना है. मैं भी सोच ही रहा हूँ बेटा, आई वाज आल्सो थिंकिंग. बट मैं देख रहा हूं कि अगर ऐसे x का वैल्यू निकाल रहा हूं, इट्स बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वी डोंट नो प्लस वाला a है कि माइनस वाला b है. क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स है ना, एक 3 प्लस अंडर रूट दिस बाई 2, एक 3 माइनस अंडर रूट दिस बाई 2. whether it's a, I don't know. So let's talk about a quadratic equation concept. In class 10 you have studied x square minus sum of roots into x plus product of roots. ये होता है एक quadratic equation का concept. Sum of roots x के साथ minus होगा sum of roots. So I will use this concept. So x square minus sum of roots. मतलब I can say a plus b is 3 and product of roots a into b is p. ये मुझे पता है. This is sum of roots, this is product of roots. Same concept apply here. C plus d is 12 and c into d is q. ठीक है, तो instead of using this is quite थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में. We are quite comfortable with these expressions instead of these expressions. So we have this expression, this expression, this expression, this expression, and this expression. तो यहां से याद रखो मुझे p q p q q p निकालना है.
लाइक टर्म्स के फॉर्म में कैसे निकालूं. सो हियर आर पी, हियर आर क्यू. एक क्यू माइनस पी निकाल ले, एक पी माइनस क्यू निकाल ले. ओके चलो निकालते हैं. Q प्लस P कितना है भैया? Q प्लस P. व्हाट इज Q? C इंटू डी. एंड व्हाट इज P? A इंटू B. ये आ रहा है C डॉट डी प्लस A डॉट B. सब अलग अलग वेरिएबल है, सब अलग अलग वेरिएबल है, कोई ठिकाना ही नहीं है क्या करना है. ठीक है, तो अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि अलग अलग वेरिएबल भी आ रहा है. और Q माइनस P क्या है भैया? C into D minus A into B. All are different variables. No idea what to do. Okay? तो since मुझे अभी different variables दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? Similar variables से convert करता हूँ. I'm gonna use this expression. मैं ये यूज करने वाला. I'm doing a brainstorming with this question. Okay? मैंने पहले यहां से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सब लिख दिया जो मिलेगा. यहां से ये मिल सकता है. देखेंगे इससे आता है आंसर. ओके? Let's think about it. तो मैंने देखा इससे चीजें कंफर्टेबल नहीं है. We are not comfortable with these things, but we are comfortable with these expressions. So I am using this thing. Next, after adding Q minus P, Q plus P, देखो हाँ, Q plus P and Q minus P सॉल्व करके नंबर्स आना चाहिए. मतलब सारा वेरिएबल्स कट जाना चाहिए अपने आप. Every variable should remove. That means we need similar like terms. ये सारे like terms के फॉर्म में होना चाहिए. Then only the things will cancel out. So try to make it a like term. Okay, fine. चलो like terms बनाते हैं. C, what is C? AR square. What is D? AR cube. Plus what is A? A is A. What is B? AR. बना दिया like terms. इससे फायदा क्या हुआ? A square R कॉमन आया. A square R कॉमन आया. तो क्या बचा? R6, R5, R4 plus 1. ये आ गया. R4 plus 1 आया. सिमिलरली यहां भी वैसे ही कुछ आएगा. A स्क्वायर कॉमन आएगा, R4 माइनस 1 आएगा, बिकॉज एवरीथिंग रिमेंस सेम. ठीक है, तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस थिंग R4 plus 1, R4 minus 1. ठीक है, तो अब जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा, therefore what is Q plus P by Q minus P? R4 plus 1, R4 minus 1. ये आ रहा है फाइनली. ये दोनों कट जाएगा. तो अब मुझे पता चला that we need the value of R. अब मुझे क्या पता चला? मुझे R का वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब मुझे ये आइडिया पता चल गया कि R का वैल्यू चाहिए. तो कैसे निकालो R का वैल्यू? कहां से निकालो R का वैल्यू? सोचना पड़ेगा. R का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो R का वैल्यू कैसे निकालेंगे? R का वैल्यू मुझे P और Q के फॉर्म में नहीं चाहिए, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स के फॉर्म में चाहिए. ये भी सोचना पड़ेगा कि R का वैल्यू जो भी आना चाहिए वो मुझे नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए. तो कहां से लाऊं नंबर्स के फॉर्म में बेटा? हाउ विल गेट दैट R वैल्यू? We did not use B square equals to AC anywhere. We did not use C square equals to BD anywhere. We have used only these expressions till now. And we end up with an expression which has only one variable. Again, you have to think now. Now you have to focus only in these parts. Because I have used only these things. So don't get confused, हाँ? मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही यूज किया है. मैंने ये कहीं यूज नहीं किया, मैंने ये कहीं नहीं यूज किया, मैंने ये कहीं यूज नहीं किया. तो अब मैं इन्हीं टर्म्स को देख के कोशिश करूंगा कि R का वैल्यू कहीं से आ जाए. ठीक है, कैसे करें? चलो देखते हैं. Take it as equation number 1. A plus B is 3. What is A? A is A. B is AR is 3. ये given है. A plus AR is 3. And C plus D? AR square plus AR cube is equals to 12. क्या मैं यहां से R का वैल्यू निकाल सकता हूं? कोशिश करना पड़ेगा. निकलेगा कि नहीं? You have to think about it. क्या नहीं कैलकुलेट. तो क्या करूं? कोई आइडिया है बेटा? सोचो. इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं R का वैल्यू निकाल सकता हूं? थिंक अबाउट इट. और क्या इनसे निकल सकता है R का वैल्यू? चलो ये इक्वेशन पे लिख देते हैं. A into B is AR equals to P and AR square into AR cube equals to Q. यहां से तो डिवाइड मारूंगा तो A कट जाएगा, R का वैल्यू P और Q के फॉर्म में आएगा ना. बट आई डोंट नीड माई R वैल्यू इन P and Q फॉर्म बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट Q plus P is to Q minus P is something this. I need my R वैल्यू इन नंबर फॉर्म. 8 पर 4 चाहिए. कहां से लाऊं? That you need to understand.
ठीक है. So how will go for it? मैं भी सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो. Okay. So please pause the video and think about it because I am also gonna think this. Okay class, मुझे मिल गया R का वैल्यू कैसे निकालेंगे से. So we are not gonna use this expression which I already told you and my assumption was correct is that if I use these expressions I will get R in terms of P and Q. एक ये. लेकिन अब मुझे LHS मिल गया है, मुझे RHS में नंबर्स चाहिए. दैट मींस R का वैल्यू नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए, वेरिएंस के फॉर्म में नहीं आना चाहिए. तो वो हम इन्हीं दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं. ठीक है ना. फ्रॉम दिस एंड दिस. सी यहां से a कितना आ जाएगा 3/1 प्लस r, a कॉमन 1 प्लस r. यहां सब्स्टिट्यूट करो a इंटू r स्क्वायर प्लस r क्यूब इक्वल्स टू 12. दैट इज 3/1 प्लस r तो r स्क्वायर प्लस r क्यूब इक्वल्स टू 12. ठीक है. ओके तो चलो सॉल्व करते हैं. 3r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब, ये 12 इक्वल्स टू 12 प्लस 12r. सबको एक तरफ लेके आओ. 3r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 12 इक्वल्स टू 0. 3 कॉमन आके कट जाएगा, क्या बचेगा r क्यूब प्लस r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब यहां से दिखेगा मेरे को, सी आई एम गेटिंग समथिंग कॉमन. ओके कुछ कॉमन ये दिख रहा है ना, पॉज करके वीडियो में जाके कुछ कॉमन दिख रहा है. अगर तुम्हें ये क्यूबिक इक्वेशन आया, राइट, हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन दैट आई हैव टॉट यू. गो फॉर हिच एंड टैन मेथड. r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 1 माइनस 1 देखो कब 0 आता है. अगर 1 डाल के 0 आया तो r माइनस 1 से इसको डिवाइड मारो. And in this way you solve a cubic equation. But I was thinking like this something a little bit earlier. But before going to the cubic equation, see I am getting something common. Similar terms are. So we are lucky enough that we are getting common. इन दोनों से r कॉमन आएगा और इन दोनों से -4 कॉमन आएगा. फिर से मैंने गलती किया था, माइनस तो -4 कॉमन आएगा. ये बचेगा r प्लस 1. सो सी r प्लस 1 कॉमन इंटू r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. So from there r plus 1 equals to 0. ये तो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अब r स्क्वायर है. तो सिंस कभी 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है. तो therefore r plus 1 equals to 0 or r square minus 4 equals to 0. So either r will be equals to -1 or r will be equals to plus minus 2. Okay, so there are three possibilities of r. There are three possibilities of r. Either plus 2 or minus 2. You have to say or 1. तो हम क्या लेंगे? तो अगर तुमने r को 1 लिया तो नीचे 0 आएगा. कुछ समझ में आ रहा है क्लास? What I'm trying to say you. Okay. So r not equals to -1. Therefore what is r? r equals to plus minus 2. So from 1 q plus p divided by q minus p equals to 2 to power 4 plus 1 by 2 to power 4 minus 1. So what is 2 to power 4? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. 16 plus 1, 17. 16 minus 1, 15. Okay, answer. So see, there are so many things new to us. पहले मैंने बोला कि ये यूज कर सकते हैं, फिर मैंने ये भी साइड में लिख दिया क्योंकि कुछ भी यूज कर सकते हैं. वी डोंट हैव एनी आइडिया कौन सा यूज करना है, वो यहां पे जाके पता चलता है. ओके नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है तो रूट्स को निकालने का तरीका ये है. लेकिन यहां से मुझे क्या पता चला कि दिस बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. यहां से कुछ आने वाला है. तो देन आई हैव यूज्ड अ कांसेप्ट दैट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक लाइक x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो वहां से मुझे सम ऑफ रूट्स मिल गया. सो नाउ आई गेटिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि ना चलो थोड़ा इजी टर्म्स आ रहा है. ओके अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है q प्लस p अलग से निकालना, q माइनस p अलग से निकालना. जब मैंने q प्लस p लिखा, यहां से लिखा q प्लस p, कहां से लिखा? व्हाट इज q? q प्लस p इज ये रहा q प्लस p. q कैरो डाला, p कैरो डाला, मैं खुद ही गुम हो गया समझाते q कहा गया b कहा. लिखने के बाद मुझे क्या पता चला कि q और p मल्टीपल वेरिएबल्स के फॉर्म में आ रहा है. इसीलिए मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ये यूज नहीं कर सकता, मुझे वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देन आई एम यूजिंग दिस कंडीशन. ओके कंडीशन यूज करने के बाद मैंने इसका रेशियो निकाला. अब मैं क्या सोच रहा हूं कि रेशियो तो आ गया लेकिन आर के फॉर्म में आया, तो मैं आर का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई नीड टू कैलकुलेट द आर वैल्यू. हाउ टू कैलकुलेट द आर? नाउ अगेन वी हैव टू गो फॉर दिस थ्री इक्वेशंस. इफ वी कैलकुलेट आर वैल्यू यूजिंग दिस एंड दिस, वी विल गेट द आर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p and q. But it will not help us because
the proof that way is the number. That means we need R value in terms of numbers. So we are going for these two questions and we are solving it. Okay, class? Okay. Wait, this video is already 50 minutes and already 1 hour, I think so. So that's all for this video, class. Thank you very much.